غیر افسانوی نثر، اس سے پہلے جب گزشتہ سیمسٹر میں ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے تو افسانوی نثر پر بات ہوئی تھی. وہ پرچہ تھا داستانوں کا، یعنی کلاسیکی نثر کا پرچہ تھا. اور جب کلاسیکی نثر کی بات آئی تھی تو اس میں داستانوں کو خاص طور پر شامل کیا گیا تھا، اور اردو کی جو بھی نمائندہ داستانیں تھیں، یعنی وہ داستانیں جنہوں نے اردو نثر کی ترقی میں اور اس کے فروغ میں کوئی نمایاں کردار ادا کیا ہو، تو ان تمام کتابوں پر گفتگو ہوئی تھی. کچھ حصے تشنا بھی رہ گئے تھے، اس بات کا بھی اعتراف کرنا ضروری ہے کہ کچھ حصے تشنا رہ گئے تھے، اس پر مزید گنجائش تھی. لیکن یہ سوچ کر کے اور یہ سمجھ کر کے دل کو سکون ملتا ہے کہ ایم اے کے طلباء ذہنی طور پر بالغ، سمجھدار اور چیزوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو اگر کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ نکات اگر ان پر بات نہ ہو سکی ہو اور وہ تشنا رہ گئے ہوں تو یہ بھی طلباء کے لیے ایک طرح سے فائدہ مند ہے. اور وہ اس طریقے پر کہ جو راستے بتائے گئے ہیں، جو راستے سجھائے گئے ہیں، جو ادب کو پڑھنے اور اس کی تفہیم کا جو سلیقہ سکھایا گیا ہے، اس کی روشنی میں وہ ان مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں. نصرت آپ اپنا ویڈیو آف کر لیجئے کیونکہ یہ جائے گا یوٹیوب پر. یہ یوٹیوب پر جائے گا، اس لیے میں ابھی کچھ دیر تک تھوڑا سا جس کو مرصع ہو کر کے گفتگو کرنا کہتے ہیں، ہے نا، وہ سلسلہ رہے گا. اور جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ جس طرح سے کلاس روم میں گفتگو ہوتی ہے اس طرح سے گفتگو ہوگی، ہے نا. تو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. ابھی یہ چیزیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں تو اس کا ذرا طلبہ خیال رکھیں گے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ گزشتہ سیمسٹر میں ہم لوگوں نے داستانوں پر کچھ گفتگو کی تھی. داستانوں پر گفتگو کرتے وقت ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ داستانوں کا سارا زور قوت بیان پر ہے اور قوت متخیلہ پر ہے. قوت متخیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے خیال کے گھوڑے کو کس حد تک دوڑا سکتا ہے، یا چیزوں کو ایک خاص زاویے سے سوچنے اور ایک خاص بلندی پر پہنچنے میں اس کو کس طرح کے مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اس کی اس قوت کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ کون سا داستان گو کس حد تک اس فرضی اور تخیلاتی کائنات کی یا دنیا کی باتیں قاری کے سامنے یا سامع کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو جب ہم غیر افسانوی نثر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ پھر افسانوی نثر کیا ہے. افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر یہ نثری ادب کی دونوں قسمیں ہیں. بہت بنیادی طور پر جس طرح سے شاعری کو، جس طرح سے شعری اصناف کو بنیادی طور پر جس طرح ادب کی اصناف کو یا سارے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شعری اور نثری، اسی طرح سے نثری صنف کی دو الگ الگ اقسام بیان کی گئی ہیں، اور وہ اقسام ہیں
अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र। बहुत साफ बात है कि जब अफसानवी नस्र का ज़िक्र होता है तो हमारे जहन में दास्तानें आ जाती हैं, और एक ऐसी दुनिया हमारी निगाहों के सामने रक़्स करने लगती है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता है। ज़ाहिर है कि उस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि किस तरह से क़ुव्वत मुतख़य्यला, किस तरह से दास्तान गो चीज़ों को एक, या अपने सामे को या अपने क़ारी को एक ऐसी फ़ज़ा में पहुंचा देता है जहां उसको ज़हनी सुकून मिलता है और वो ज़िंदगी की हकीकतों से एक हद तक बेगाने महज़ बन कर के रह जाता है। उस पर कई ज़ाविये से गुफ्तगू की जा सकती है कि उसकी इफ़ादियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और उसके बारे में कुछ न कुछ बातचीत हुई है। वो सब आपके ज़हन में चीज़ें महफूज भी होंगी कि उससे तहज़ीब की, उससे हमारी सक़ाफ़त की, उससे हमारे रहन-सहन की, उसके हमारे रस्म व रिवाज की, और उससे हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ झलकियों को उस दौर में, जिस दौर में दास्तानें लिखी गई थी, समझने में और एक नतीजे तक पहुँचने में मदद यकीनी तौर से मिलती है। जब हम फ़िक्शन की बात करते हैं, अफ़सानवी अदब की बात करते हैं, तो उसमें उसी के साथ-साथ नॉवेल, अफ़साना और एक हद तक ड्रामा भी उसमें शामिल है। नावल के साथ नावेलेट का भी ज़िक्र आ जाएगा। ये जो 4 नसरी असनाफ़ हैं, जिनमें क़िस्सापन होता है, जिसमें कहानी होती है, ये तमाम की तमाम अफ़सानवी अदब के ज़ुमरे में शामिल होती हैं, अफ़सानवी अदब के ज़ुमरे में। और अफ़सानवी अदब ज़ाहिर है कि उसको क़िस्सापन, उसमें कहानी, उसमें गैर हकीकी वाक़यात का बयान होता है। ये अलग बात है कि उस वाक़ये में या उस क़िस्से में या नावल के उस मौज़ू में जो कहानी बयान होती है, जो सूरत हाल की तर्जुमानी होती है, वो मबनी बर हकीकत होती है। उसका हकीकी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता होता है। उमराव जान अदा लखनऊ की कोई तवाइफ हकीकत में रही हो या न रही हो, लेकिन नाम की तब्दीली से उस तरह के किरदार आपको लखनऊ की तहज़ीब में कदम कदम पर मिल सकते थे, जिस दौर में ये नावल लिखा गया था। 1899 की तख्लीक़ है ये, तो उसको उस पस मंज़र में देखना चाहिए कि अफ़साने में या नावल में जो किरदार होता है वो गैर हकीकी, फ़र्ज़ी, तख़य्युलाती किस्म का होता है, मगर उसमें जो ज़िंदगी की धड़कनें शामिल रहती हैं, उनका हमारी समाजी ज़िंदगी से बहुत गहरा रिश्ता होता है। अलग़रज़ ये एक दूसरी बहस है। मैं उसके सामने गैर अफ़सानवी नस्र को का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जब हमको ये बात मालूम हो गई कि अफ़सानवी नस्र क्या है, तो इस बात का तय्युन करने में हमें बहुत दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए कि गैर अफ़सानवी नस्र क्या है। ज़ाहिर है कि गैर अफ़सानवी नस्र उस नस्र को हम कह सकते हैं जिसकी बुनियाद हकीकत पर हो, जिसकी बुनियाद सही और सच्चे और दुरुस्त वाक़यात पर हो, है ना? और उसमें क़ुव्वत मुतख़य्यला यानी फ़िक्र की बुलंद परवाज़ी और तख़य्युल की जो कार फरमाई है, उसके अलावा क़ुव्वत आख़िज़ा एक होती है। क़ुव्वत आख़िज़ा चीज़ों को देख कर के समझने, सोचने, गौर व फ़िक्र करने और उससे कुछ हासिल करने की जो एक ताकत होती है, जो एक क़ुव्वत रखी गई है, उसको क़ुव्वत आख़िज़ा कहते हैं। नताइज निकालने की क़ुव्वत, बहुत बदीही तौर पर, बहुत मोटे तौर पर ये बात उससे समझी जा सकती है। तो इस तरह से गैर अफ़सानवी नस्र में क़ुव्वत आख़िज़ा की कार फरमाई होती है और अफ़सानवी नस्र में क़ुव्वत मुतख़य्यला की। अब गैर अफ़सानवी नस्र में अगर हम देखेंगे तो जिन असनाफ़ का ज़िक्र उसमें शामिल किया जा सकता है, उसमें
खतूत हो सकते हैं, मकतूब नगारी, है ना। खतूत दो अफराद के दरमियान एक एक कहना चाहिए कि राबते की एक कड़ी है। और जब खतूत के बारे में आप तफसील से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि खतूत किस तरह से दो अफराद के दरमियान उनके निजी रिश्तों की और उसके पर्दे में समाजी, सियासी, तहज़ीबी और एक तरह से कहना चाहिए कि मुआशरती ज़िंदगी की बहुत सारी झलकियाँ हमको एक साथ देखने को मिल जाती हैं। शख्सियत की नकाब कुशाई भी होती है उसमें, शख्सियत की नकाब कुशाई भी होती है। और ये जितने अनासिर हैं, ये जितने फ़वाइद हैं और ये जितनी खसूसियात हैं, वो सब के सब मबनी बर हकीकत होती हैं। आप सफ़रनामा को ले लीजिए। सफ़रनामा ज़ाहिर है कि एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करने और उसके तजर्बात और मुशाहिदात और जो भी वाक़यात पेश आए हैं उनको एक ख़ास अंदाज में तहरीर करने की सिन्फ़ है ना। उर्दू में जब पहले सफ़रनामे की बात होती है तो यूसुफ़ खान कंबलपोश का नाम हमारे ज़हन में गर्दिश करने लगता है। और उनकी एक किताब अजायबात फ़िरंग के नाम से ये 1847 में लिखी गई थी। इंग्लिस्तान का यानी जो बरतानिया है उसका उन्होंने सफ़र किया था और उसके बाद अपने मुशाहिदात को और एक तरह से जो कुछ भी उन्होंने खुली आँखों से देखा था और दोनों मुल्कों की तहज़ीब को समझने समझाने की एक कोशिश की थी उन्होंने। तो इस तरह से वो तमाम की तमाम बातें जो उस सफ़रनामे में पेश की गई हैं वो सब हकीकी वाक़यात हैं, वो सब मौजूद हैं। वो किसी तख़य्युलाती और किसी दास्तानी दुनिया की कोई कहानी नहीं है ना। बागो बहार का दरवेश जब मुल्क फ़िरंग की बात करता है तो वो फ़िक्शन है, वो फ़र्ज़ी है, वो तख़य्युलाती है। लेकिन अजायबात फ़िरंग का मुसन्निफ़ जिसने उस मुल्क की सैर की हो, जो सैर व तफरीह की गरज से जो उन गलियों में और वहाँ की फ़ज़ा में रहा सहा हो कुछ दिनों के लिए, अगर वो कोई बात बयान करता है तो वो फ़िक्शन नहीं है, वो मबनी बर हकीकत है। उसमें हकीकी वाक़यात की गूंज और हकीकी वाक़यात की धड़कनें शामिल हैं। तो इस तरह से सफ़रनामा गैर अफ़सानवी नस्र के ज़ुमरे में आएगा। एक और कोई भी सिन्फ़ उठा लीजिए, सवानह निगारी मिसाल के तौर पर, है ना। सवानह निगारी की जो सिन्फ़ है वो बज़ाते ख़ुद गैर अफ़सानवी नस्र के ज़ुमरे में आएगी। वो इस तरीक़े पर कि सवानह निगारी ज़ाहिर है कि किसी अदीब, किसी शायर, किसी किसी बड़े आदमी की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात, उसकी पैदाइश और उसके ख़ानदान और आबा व अजदाद से लेकर के उसकी मौत तक, उसकी वफ़ात तक का ज़िक्र होता है। ये वाक़यात की एक मुसलसल कड़ी होती है। तमाम वाक़यात उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अहम वाक़यात जिनकी मदद से उस आदमी की शख्सियत बहुत रोशन और बहुत निखर कर के सामने आती है, वो उसमें शामिल होते हैं, है ना। तो सवानह निगारी में भी जो बातें बयान की जाती हैं, जो वाक़यात हैं, वो सब हकीकी वाक़यात होते हैं। तो इस तरह से सवानह निगारी जब उसका ज़िक्र आता है तो हमारे ज़हन में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम आता है, हयात सादी यादगार गालिब और हयात जावेद के साथ मौलाना शिबली नोमानी का नाम आता है, सीरतुन नोमान और अ, अल फ़ारूक, अल ग़ज़ाली, सवानह मौलाना रूम। इस तरह से जो दौर है वो उस दौर में गैर अफ़सानवी नस्र की कई सारी असनाफ़ हमारे सामने आती हैं। और ये दौर कौन सा है? ये दौर है 1825-26 से लेकर के और 1800
70-75 तक का, जिसकी एक दरमियानी कड़ी और बहुत अहम मोड़ 1857 का इनकलाब है। 1857 के इनकलाब ने हमारे अदब की सिमत रफ्तार को किस हद तक मुतासिर किया या उसको किस हद तक नए रास्ते पर गामज़न कर दिया, इस पर हम अगली क्लास में गुफ्तगू करेंगे।